Hello everyone, welcome back to my channel. Starting with my series on the current affairs, whenever we have current affairs as a part of the syllabus for any entrances preparation, I believe the current affairs of the last 3 months stand very crucial. Now, since for the Christ University entrance test, which was going to be started from like mid-April, the current affairs for the last 3 months being March, February and starting of April stands very important. So in this video I'll be covering the current affairs of March. They're going to be one liners current affairs so that we can cover a lot of current affairs in small liners. It will be easy for you to learn these because I'll be teaching you them in very easy language, and so that it is easy for you to retain as well. So let's get started. Before that, I hope you've subscribed to the channel because there's a lot that I'm going to post regarding the entrances preparation. My next video being the current affairs for February, and also a few current affairs important for April, since the Christ University entrance test was scheduled for April. So let's get started. The first one we'll be discussing is under the so I'll be starting with polity and governance first, and then we'll be covering sports and like culture and everything. So starting with the first one we have here is a citizen's right to own private property is a human right. It has always been, but it was affirmed again by the case of an 80-year-old woman Vidya Devi, whose 3.34 hectare land was forcibly taken. So under this, because this case had come up again, that is why it was ruled out that a citizen's right to property is a human right. Next being India's first commercial LNG bus. India's first commercial LNG bus. LNG stands for liquefied natural gas. Liquefied natural gas bus. It was launched in Kochi. Now the third important current affair being India joins Indian Ocean Commission. So India has joined the Indian Ocean Commission, and it stands here as an observer. So India has joined, but not as a member, but as an observer, bolstering Indo-Pacific vision. So bolstering means to support. So India has joined as an observer to support the Indo-Pacific vision. Then the fourth current affair is India-Myanmar cross-border bus service from April to deepen sub-regional connectivity. So India and Myanmar have started a cross-border bus service from April, and the main aim was this to deepen sub-regional connectivity. Then we have Niti Aayog selects Jammu and Kashmir. So Niti Aayog, which is the National Institution for Transforming India, Niti Aayog had replaced Planning Commission. So Niti Aayog had selected Jammu and Kashmir as the first pilot project. So pilot is like a prototype project. So pilot project, something that is experimented first and then implemented. So the experiment which happens, the area where the first experiment happens, is what is called the first pilot project. So the Niti Aayog has chosen Jammu Kashmir for the first pilot project among all states and union territories on sustainable development goals. तो जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्टली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टेस्टिंग हुई जाएगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की टेस्टिंग हुई जाएगी, एंड देन इफ इट्स सक्सेसफुल देन मोस्ट प्रोबेबली नीति आयोग वुड सजेस्ट फॉर implementation of sustainable development goals in other states as well. Now Goa becomes India's first state. So Goa has become India's first state to have resource efficiency
strategy. Goa has come up with its own resource efficiency strategy. Fourthly, Madhya Pradesh, Odisha are the top performers in digitizing land records. So NCAER, which is the National Council of Applied Economic Research. This is important for all the students who are applying for economics course. So National Council for Applied Economic Research, this organization or this institution has said that Madhya Pradesh, MP and Odisha are the first top performers in digitizing land records. So they have digitized the land records, and this has been established by NCAER, which is the National Council of Applied Economic Research. Fourthly, we have the center has declared National Chambal Sanctuary. It is also an important part of GK, general awareness as well, that National Chambal Sanctuary in MP. So this is where it is MP. It can also come as a general awareness question कि National Chambal Sanctuary है कहाँ पे. It is in Madhya Pradesh and it is an eco sensitive zone. ये सेंटर ने बोल दिया है. It is an eco sensitive zone. Then we have Uttarakhand got a new summer capital. So Uttarakhand has now got a new summer capital. New summer capital. So Gairsen is the name of the new summer capital which has come up for Uttarakhand. Okay. So Uttarakhand का new summer capital is Gairsen. GAIRSAIN. The state's current winter capital कौन सा है, ये आप जनरल अवेयरनेस के लिए याद कर लीजिए. देहरादून उसका विंटर कैपिटल है. Then we have in a first 2 Indian law schools feature in QS World University rankings. तो इंडिया के 2 लॉ स्कूल्स ऐसे हैं जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आए गए हैं. इंडियन लॉ स्कूल, वो भी 2 लॉ स्कूल्स, वो भी 2. देन वी हैव, सो इसमें कौन से हैं, ये हैं हमारे OP जिंदल यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल लॉ स्कूल. सेकेंडली इट इज़ बैंगलोर्स नेशनल लॉ स्कूल हैज़ ऑल्सो बीन रैंक्ड बिटवीन 150 and 200. तो आप याद कर लीजिए कि OP जिंदल यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल लॉ स्कूल ये हमारा 100 से 150 में आता है, और दूसरा वाला जो लॉ स्कूल है फेमस बैंगलोर्स नेशनल लॉ स्कूल कम्स बिटवीन 150 to 200 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के लिए. देन वी हैव 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विल बी हेल्ड एट, सो 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ पे टेक प्लेस करेगी. इट विल टेक प्लेस एट सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट पुणे. if you're applying for symbiosis and current affairs is a part of the syllabus, then I believe that this stands very crucial. 108th Indian Science Congress is going to be held at Symbiosis International University, Pune. It will be held from 3rd to 7th January 2021. तो अभी टाइम है. It is from 3rd to 7th Jan 2021. Now we have Chapchar-Kut, the biggest and most joyful festival of Mizos. तो Mizos का सबसे joyful and biggest festival is Chapchar-Kut. ये हमारा मार्च में सेलिब्रेट होता है. ये इसलिए हमारे उसमें आया है करंट अफेयर में. इसका मतलब एक्चुअली चपचरकूट का एक्चुअल मतलब ये है अ फेस्टिवल हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बैम्बूज एंड ट्रीज दैट हैव बीन कट डाउन आर बीइंग अवेटेड टू ड्राई टू बी बर्न्ड फॉर झूमिंग. तो वो जो बैम्बूज और ट्रीज ग्रो हुए होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं टू बी कट डाउन. उनको कट करेंगे और फिर उनको ड्राई करेंगे या फिर उनको बर्न करेंगे जूमिंग के लिए.
Then we have world's largest religious congregation of women held in Thiruvananthapuram. So world's largest एक religious congregation हुआ women का in March. This was held in Thiruvananthapuram. Then we have IIT Bombay या फिर दिल्ली ब्रेक इनटू टॉप 50 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. तो पहले हमें पढ़ा कि हमारे 2 लॉ स्कूल्स आए थे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में. अब IIT बॉम्बे और दिल्ली दोनों ही QS टॉप 50 में, टॉप 50 ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आ चुका है. सो IIT बॉम्बे इज़ रैंक्ड 44. It is 44 and IIT Delhi has been ranked 47th. Okay. Then we have Maharaja Ranjit Singh named as the greatest leader of all time. तो एक BBC पोल हुआ था, उसमें महाराजा रंजीत सिंह को बोला गया है ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम. ही वॉज द रूलर ऑफ अ सिख एम्पायर. वो फाउंडर भी हैं सिख एम्पायर के और रूलर भी हैं, और उनको ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम माना गया है. वो भी BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन, नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन में माना गया है कि ही इज़ द मोस्ट फेमस लीडर एंड मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम. नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन रिकन्स्टिट्यूटेड विद अमित शाह एज हेड. तो अमित शाह की गाइडेंस के अंदर एक नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन. तो डिज़ास्टर से जो रिस्क होते हैं टू प्रॉपर्टी एंड सिविलियन लाइफ, उसको रिड्यूस करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ अमित शाह ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. देन वी हैव इंडियाज़ फर्स्ट वेबसाइट ऑन विमेंस राइट्स एंड लॉज. तो हैदराबाद में एक ऐसी साइट लॉन्च करी गई है विच इज़ द फर्स्ट इंडियाज़ वेबसाइट जो कि विमेंस राइट और लॉज के लिए स्पेशली बनाई गई है. ऐसे इंडिया में पहले कभी नहीं बनी थी और अब ये बनाई गई है. देन वी हैव प्रहलाद सिंह inaugurated an exhibition titled Jallianwala Bagh in New Delhi. This is not very important but you must remember that Jallianwala Bagh exhibition एक लगी थी न्यू दिल्ली में मार्च में, और वो प्रहलाद सिंह पटेल ने इनाग्रेट करी थी. देन वी हैव सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स डिलिमिटेशन पैनल फॉर JK एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ट्रेडिशनल फगली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश किन्नौर. तो एक फेस्टिवल का नाम है फैगली और ये बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की जगह में. and it is observed as the victory of good over evil. Somehow we celebrate Diwali as victory of good over evil. Similarly, in Himachal Pradesh, Kinnaur, Fagli, a festival, is celebrated for the victory of good over evil, right? Then we have Time magazine names 100 historical women of the year. तो टाइम मैगज़ीन ने 100 हिस्टोरिकल वुमेन को नेम किया है और ग्लैडली उसमें एक इंडियन वुमेन है पार्ट ऑफ हु इज़ इंदिरा गांधी. सो इंदिरा गांधी इज़ अ पार्ट ऑफ दोज 100 हिस्टोरिकल वुमेन ग्लोबली, हिस्टोरिकल वुमेन ऑफ द ईयर. देन वी हैव आंध्र प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन कंट्री फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान. तो पोषण अभियान का एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, एक ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन किया गया है आंध्र प्रदेश में और इसलिए ही वो रैंक फर्स्ट किया गया है पूरी कंट्री में, क्योंकि एक यही ऐसा स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान अच्छे से किया गया है. देन वी हैव श्री गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्चेस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2. तो अब हमारा एक स्वच्छ भारत मिशन
फेज़ 2 शुरू हुआ है वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुरू किया है। देन वी हैव गुजरात टॉप्स इन डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसने डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में टॉप किया है सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया में से। देन वी हैव केरला टू लॉन्च डिजिटल लिटरेसी ड्राइव सेइंग आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो केरला ने एक डिजिटल लिटरेसी ड्राइव शुरू करी है, डिजिटल लिटरेसी ड्राइव, जिसका थीम है आई एम ऑल्सो डिजिटल। देन वी हैव इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस इन कोलकाता। कोलकाता में एक फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस शुरू हुई है। इट इज़ अ लॉकर विच इज़ डिजिटल। इट इज़ बीइंग स्टार्टेड इन कोलकाता इन इंडिया। एलपीजी स्कीम पीएम उज्ज्वला योजना अब बंद हो चुकी है। ओनली 3 स्टेट्स हैव बिकम केरोसिन फ्री। तो वैसे उज्ज्वला योजना का मेन पर्पस ही ये था कि केरोसिन फ्री स्टेट्स बन जाए, लेकिन द फैक्ट इज़ कि इस मार्च हमारी एलपीजी स्कीम पीएम उज्ज्वला योजना बंद हो चुकी है, लेकिन 3 स्टेट्स ही जो हैं वो बन पाए हैं केरोसिन फ्री। देन वी हैव पार्लियामेंट पासिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2020। तो पार्लियामेंट ने पास करा है कोड 2020 में, विच इज़ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें आउट ऑफ अराउंड 43,000 केसेस डिस्पोज्ड ऑफ बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नियरली 15,000 केसेस ऐसे हैं जो रिजॉल्व किए गए हैं बेस्ड ऑन दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट, बट आई बिलीव कि अगर मैं उसको बोल दूँगी एक बार तो आप याद कर सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन व्हाइल आई एम स्पीकिंग। नेक्स्ट इज़, सो दिस इज़ पार्लियामेंट पासिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2020, बिकॉज आई बिलीव इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग देन हो सकता है कि आपको और धीरे लगे वीडियो। यू कैन राइट एज आई स्पीक। सो पार्लियामेंट पासिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल 2020, इसकी वजह से 15,000 केसेस, जो पहले 43,000 केसेस हैं जो कि हमें वो सही करने थे, इसकी बेसिस पे 15,000 हो चुके हैं सही। देन वी हैव न्यू दिल्ली स्टेशन इज़ द फर्स्ट स्टेशन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोग्राम। तो न्यू दिल्ली स्टेशन को फर्स्ट स्टेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोग्राम का पार्ट बना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो ऐसे स्टेशंस बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास हो, और इसलिए न्यू दिल्ली स्टेशन इसका ऐसा फर्स्ट स्टेशन है। देन वी हैव क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर शेयरिंग इन्फो ऑन हीनियस क्राइम लॉन्च्ड। तो एक ऐसा क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर खोला गया है जिसमें कोई भी हीनियस क्राइम हो तो उसकी शेयरिंग हो सकती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। ऐसा एक मल्टी एजेंसी सेंटर लॉन्च किया गया है। सो व्हाट इज़ दैट सेंटर? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर शुरू किया गया है। यहाँ पे कोई भी हीनियस क्राइम होता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो आप बता सकते हैं। देन सेंटर सैंक्शंस रुपीज़ 365 करोड़ सेंटर ने सैंक्शन किए हैं फॉर सबरूम आईसीपी इन त्रिपुरा। सबरूम आईसीपी इन त्रिपुरा। So what is Sabroom ICP now? So basically center has sanctioned rupees 365 crore for constructing a new integrated check post. तो ICP is integrated check post है ये integrated check post त्रिपुरा में शुरू किया गया है at सबरूम। तो सबरूम पे शुरू किया गया है, एक जगह है द सदर्न मोस्ट टाउन इन साउथ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट टाउन सबरूम है जहाँ पे एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। देन वी हैव सेंसस इंडिया 2021 टू बी कंडक्टेड इन 2 phases। ये हमारा ऐसा है, फर्स्ट फेज़ विल बिगिन फ्रॉम 1st of नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल से शुरू होगा एंड विल कंटिन्यू अंटिल 30th of September। तो ये फर्स्ट फेज़ है। फिर सेकेंड फेज़ होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का, जो कि 9th February नेक्स्ट ईयर शुरू किया जाएगा। सो यू मस्ट नो दैट
सेंसस 2021 फॉर इंडिया इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन 2 phases. एक फेज़ अभी शुरू हो जाएगा, हो चुका होगा अभी तक, and it is going to go till 30th September. Then we have second phase which will have population enumeration starting in February in 2021. Then we have former CJI Ranjan Gogoi takes oath as Rajya Sabha member. तो रंजन गोगोई एक हमारे CJI हैं, रंजन गोगोई ये हमारे CJI रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इनको अब राज्यसभा मेंबर बना दिया है, राज्यसभा मेंबर. देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स परमानेंट कमीशन फॉर विमेन इन इंडियन नेवी. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है परमानेंट कमीशन. तो अब परमानेंट कमीशन मिल सकती है फॉर विमेन इन इंडियन नेवी, ये क्लियर कर दिया गया है, फॉर विमेन इन इंडियन Navy. Then we have Prime Minister Narendra Modi proposes emergency COVID-19 fund for SAARC nations. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने emergency COVID-19 के फंड्स जो हैं वो SAARC nations which is the South Asian Association for Regional Cooperation, इसके लिए COVID-19 फंड रेस किए गए हैं, मतलब प्रपोज किया है emergency फंड. Then we have ECI appoints हृदेश कुमार न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर का न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इज़ हृदेश कुमार. ये कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं हृदेश कुमार. CEO नहीं है वो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है वो, ही इज़ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हृदेश कुमार. Then we have Rajya Sabha passes Central Sanskrit Universities Bill. Central Sanskrit Universities Bill पास किया गया है 2019 में. Then है झारखंड थर्ड स्टेट टू लॉन्च स्टार रेटिंग फॉर इंडस्ट्रीज़. तो झारखंड एक ऐसा थर्ड स्टेट है, बेसिकली 3 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने स्टार रेटिंग फॉर इंडस्ट्रीज़ शुरू करी है. और स्टार रेटिंग फॉर इंडस्ट्रीज़ का मतलब है कि वो स्टार रेट करेंगे इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस कि वो कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. सो इफ़ योर AC इज़ अ 5 स्टार इट मीन्स दैट इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड दैट इट यूजेज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट इज़ इको फ्रेंडली. सो झारखंड एक थर्ड स्टेट है जिसने ये शुरू किया है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टार रेटिंग दिया करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. देन वी हैव लोकसभा पासिस एयरक्राफ्ट बिल. एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पास हुआ है लोकसभा में 2020 में. देन वी हैव सेक्शन 144 इम्पोज किया गया था राजस्थान में. सेक्शन 144 इम्पोज्ड इन राजस्थान. सो चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज किया. इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि असेंबली ऑफ मोर देन 4 पीपल से ज़्यादा अगर लोग गैदर हुए तो इन ऑर्डर टू तो 4 से ज़्यादा लोग गैदर हुए तो वो इलीगल है. सो मोर देन 4 पीपल कैन नॉट गैदर इन वन एरिया. दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस टिल March 31. उन्होंने सिर्फ ये March 31 तक करा था. देन वी हैव द निर्भया गैंग रेप केस, द 4 convicts वर हैंग टू डेथ. देन वी हैव Indian Army now world's largest ground force as China cuts down its strength by half. तो अब इंडियन आर्मी जो है उसकी इट इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स. वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स है. पहले चाइना था पर चाइना ने अपना हाफ कट डाउन कर दिया स्ट्रेंथ, तो इसलिए अब इंडिया हो गया है. जनता कर्फ्यू ऑब्जर्व किया गया था March 22 में, ऑब्जर्व फ्रॉम 7 AM to 9 PM. कमलनाथ रिजाइंस एज चीफ मिनिस्टर अहेड ऑफ मध्य प्रदेश फ्लो टेस्ट. तो जब मध्य प्रदेश के फ्लो टेस्ट होने वाले थे उस टाइम पे कमलनाथ ने चीफ मिनिस्टर से रिज़ाइन कर दिया था. जस्ट अ सेकेंड. या सो कमलनाथ हैड रिजाइन फ्रॉम बीइंग द चीफ मिनिस्टर.
Then we have Manipur is the fourth state in India where the inner line permit regime was introduced. तो आप याद कर लीजिए मणिपुर है, मणिपुर ये हमारा फोर्थ स्टेट है. It is the fourth state where the inner line permit regime was, so inner line permit regime was introduced. It was introduced. Then we have Gujarat police first in India to introduce taser guns. taser guns प्रोड्यूस किए गए हैं फर्स्ट टाइम इंडिया में गुजरात पुलिस की तरफ से. देन वी हैव शिवराज सिंह चौहान, उसने अभी वो चीफ मिनिस्टर बनाया है मध्य प्रदेश का चौथी बार फॉर द फोर्थ टाइम. फर्स्टली वी हैड डिस्कस दैट कमलनाथ हैड रिजाइन फ्रॉम बीइंग द चीफ मिनिस्टर बिफोर द MP floor test. नाउ शिवराज सिंह चौहान इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द फोर्थ टाइम. फिर हमारा है PM कॉल्स फॉर लॉकडाउन ऑफ इंटायर नेशन फॉर 21 days. फिर हमारा है 7th वर्ल्ड सिटीज़ समिट टू बी हेल्ड इन सिंगापुर. तो एक 2020 जुलाई में होना है ये 7th वर्ल्ड सिटीज़ समिट टू बी हेल्ड इन सिंगापुर. और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज फर्स्टली इफ़ वी डू गो अहेड विद द इंडियन करंट अफेयर्स it is more important. In most entrances preparation mostly Indian current affairs are asked, but also global are very important, तो वो भी होने चाहिए. but global बहुत superficially, मतलब जो बिल्कुल ऐसे हैं जो पता ही होने चाहिए वो आते हैं globally, but इंडिया के कोई भी आ सकता है. then we have Punjab is the first state to impose curfew amid lockdown as residents continue to step out. तो पंजाब ऐसा फर्स्ट स्टेट था जिसने कर्फ्यू रखा था, इम्पोज किया था. then we have सेंटर अनाउंसेस रिलीफ पैकेज वर्थ रुपीज़ 1.7 लाख करोड़. 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर की तरफ से फॉर द पुअर. देन वी हैव उड़ीसा टू सेट अप इंडियाज़ लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल विद 1000 बेड कैपेसिटी. तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसको सेटअप करना है 1000 बेड कैपेसिटी का सबसे लार्जेस्ट कोविड-19, एक स्पेशल हॉस्पिटल डेडिकेटेड टू कोविड-19 उड़ीसा ने बनाने का रिजॉल्व लिया है. देन वी हैव इंटरनेशनल भी इंपॉर्टेंट है बट ये सुपरफिशियली वाले करेंगे हम जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. सो लग्जमबर्ग बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री. ऐसा कोई कंट्री नहीं जिसमें बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हो, बट लग्जमबर्ग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम फ्री है. Then we have Sri Lankan government not to sign MCC with US. MCC is Millennium Challenge Cooperation. ये श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं करेगी साइन US के साथ. रूलिंग पार्टी रिटेन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन कैमरून्स पार्लियामेंट. तो प्रेसिडेंट पॉल बियास पार्टी हैज़ रिटेन्ड एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन कैमरून्स पार्लियामेंट. कैमरून की जो पार्लियामेंट है उसमें जो रूलिंग पार्टी है अभी पॉल बिया की जो पार्टी है, it has retained an absolute majority. ये ज़्यादा important नहीं है. अर्जेंटीना said to become the first major Latin American country to legalize abortion. तो अर्जेंटीना एक ऐसी जगह है जो कि फर्स्ट है, फर्स्ट मेजर लैटिन अमेरिकन कंट्री है. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में से फर्स्ट कंट्री है जो जिसने अबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया. इट हैज़ बीन लीगलाइज्ड, राइट. Now we have world's first yoga university outside India is to be started postgraduate courses in the USA. एक वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी ऐसी जिस इंडिया के बाहर जो खुद के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट करी है वो USA में इनिशिएट हुई है. Then we have China assumes presidency of UNSC for March 2020. So China has taken over as a president. तो UNSC में प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं, कंट्री प्रेसिडेंट. सो चाइना हैज़ टेकन ओवर द कंट्री प्रेसिडेंट और ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द UNSC या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल. We will discuss UN Security Council in some other video. Basically UN Security Council is a very important organization as a part of the United Nations. And इसमें भी बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है. We have 5 permanent members, we have 10 non-permanent members. एंड ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं हमारे US, UK, रशिया, USA एंड चाइना. वेट, डिड आई जस्ट रिपीट US? लेट मी डू इट अगैन. सो वी हैव US, UK, रशिया, चाइना एंड फ्रांस. या सो दीज 5 countries are the ones
जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, बिकॉज यूएनएससी डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनको परमानेंट मेंबर्स बना दिया गया था. नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएनएससी इन अनदर ऑफ माई वीडियोज, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ कमिंग बैक टू द ग्लोबल करंट अफेयर्स. श्रीलंका टू लीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेक्टर इन BIMSTEC. तो एक वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, सो इट इज़ BIMSTEC, और श्रीलंका लीड करने वाला है इस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर को. स्लोवेनिया ने कंफर्म कर दिया है कि ओर्बन एली इज़ इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर. तो स्लोवेनिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर, स्लोवेनिया का न्यू PM इज़ ओर्बन एली. Then we have Muhyiddin Yassin sworn in as Malaysia's new prime minister. तो मलेशिया का न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ Muhyiddin Yassin. He is Muhyiddin Yassin. He has sworn in as the Malaysia's new prime minister. Then we have Freedom in the World 2020 रिपोर्ट रैंक्स इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसीज़. तो इंडिया अमंग लीस्ट फ्री, सबसे कम फ्री डेमोक्रेसीज़ में से आया गया है. किस रिपोर्ट में? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में. पाकिस्तान टॉप्स इन होल्डिंग बायसेस अगेंस्ट वुमेन. तो UN रिपोर्ट एक बनती है, उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ विमेन के अगेंस्ट बायसेस बहुत ज़्यादा होल्ड करती हैं. तो पाकिस्तान ने उसमें टॉप किया है. सो विमेन इन पाकिस्तान are held against very many biases. Then we have Ashraf Ghani sworn in as the Afghanistan president. अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट, अभी तक हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, नाउ इज़ प्रेसिडेंट. वो कौन है? अशरफ घानी. अशरफ घानी. देन वी हैव Delhi hosts India Russia Friendship Fest to mark 20 years of strategic partnership. तो एक मेड इन इंडिया रशियन इंडियन फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन शुरू करी जा रही है. ये March 7 to 8 में शुरू करी गई थी, आज सेलिब्रेट की गई थी, और वो भी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन दिल्ली में, Delhi became the city's main cultural attraction over the signifying bonds between Delhi and Moscow. Moscow is the capital of Russia. Then we have Russia passes a bill allowing Vladimir Putin to stay in power for next 12 years. So because of the kind of dictatorship that Russia is witnessing right now under the leadership of Vladimir Putin, so Putin is now to stay in power for the next 12 years. Putin is now to stay in power for the next 12 years. ऐसा एक बिल पास कर दिया गया है. Then we have Sri Lanka ranked best internet inclusive country in South Asia. सबसे सेकेंड बेस्ट है, मतलब इंटरनेट इंक्लूसिव कंट्री है साउथ एशिया में. Then we have India was second largest arms importer in 2015 to 19. तो 2015 से 19 में इंडिया was the second largest arms importer. हमें सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट किए गए हैं. जॉय बांग्ला टू बी नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बांग्लादेश का नया स्लोगन है जॉय बांग्ला. देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी, वार्न्स कोरोना वायरस क्राइसिस कुड लास्ट 6 months. ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने बोला है. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड सबसे, मतलब फिनलैंड इज़ अगेन वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट. तो हर साल निकाला जाता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और देखा जाता है कौन सी कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट है. उसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस में सबसे आगे फिनलैंड है. इंडिया की रैंक 144 है. देन वी हैव ट्रंप बिकम्स रिपब्लिकन पार्टीज प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंशियल नॉमिनी. हर पार्टी का जो प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनता है उसमें रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप बना गया है. देन वी हैव यूनाइटेड नेशंस लॉन्चेस $2 billion रिस्पॉन्स प्लान टू फाइट कोरोना. तो UN ने कितने पैसे का प्लान निकाला है? $2 billion
2 बिलियन का रिस्पॉन्स प्लान निकाला है टू फाइट कोरोना. देन वी हैव इन फर्स्ट, इंडिया फ्रांस कंडक्ट जॉइंट पैट्रोल्स फ्रॉम रीयूनियन आइलैंड. इंडिया और फ्रांस ने फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्टेड जॉइंट पैट्रोल्स for the reunion island, signaling New Delhi's intent to engage with friendly foreign partners in its expanding footprint in the Indian Ocean. Then we have Princess Maria Teresa of Spain becomes first royal to die from COVID-19. तो वो एक ऐसी फर्स्ट रॉयल है, प्रिंसेस मारिया टेरेसा. सो हु वाज द फर्स्ट रॉयल? प्रिंसेस मारिया टेरेसा फ्रॉम द स्पेन. Maria Teresa from Spain had become the first royal to have died from COVID-19. So this is it for the global current affairs. I will be covering economy and finance in the rest of my videos. I'll be covering sports, culture, miscellaneous and everything else that you need to know. So stay tuned and check out rest of the videos. Subscribe to my channel, like this video if you like it, and share it with your friends and classmates and friends and everyone else, so that they can also be updated with the current affairs, especially for the Christ University entrance test takers. I would suggest कि ये current affairs एक बार भी आप सुन लोगे ना, even if you're listening as a podcast, even if you like switch off this, like you don't see the screen but you just listen to it as an audio, it would be really helpful for you because the mind would try to retain at least half of it. So stay tuned, and that is it. Thank you so much.